Hello students, good morning. Today's topic double linked list. So in my previous lecture where I also try to make you understand the basic about double linked list. But in this video I would try to make you understand how can be possible traversing as the forward traversing and backward traversing also after using a theoretically and practically both. Okay. So now let us start and try to understand about doubling list. But before I have a little request, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. Now, note to show for this picture. Yeah, सिंपल सी बात है अगर लिंक लिस्ट की बात की जाती है एंड इफ आई ट्राई टू इंसर्ट एनी एलिमेंट लाइक 5, 15, 20, 25 and 30 like this. Okay, suppose we have an element and after using a doubly linked list I would try to print these elements. Okay, and also try to print as the backward and forward also. Okay, so now notice over this doubly linked list में क्या है कि as we try to insert this element, जैसे ही हम इस एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहेंगे सो डेफिनेटली इन दिस केस दिस विल क्रिएट अ नोड. ये नोड क्रिएट करेगा और जहां हर एक नोड जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है. ओके, हर एक नोड हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है एंड एज वी नो दैट as soon as as soon as I try to insert these types of elements, as soon as I print these types of elements, so definitely this will take a randomly address in our system. वो हमारे system में क्या करेगा, random address लेगा. So suppose this node address is 104. So this node address is 158 1104 1158 1176 1112 and 1138 randomly anywhere. ओके, हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे सिस्टम में जो एड्रेस लेगा हर एक एलिमेंट्स के लिए वो रैंडमली कहीं पर भी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सो एरे के जैसा लाइक द एरे दिस विल टेक एड्रेस एज द कंटिन्यूअस फॉर्म like 1104, then the next 1108, now the next 1112 like this. Okay, because here each element take a 4 byte, so according to this array में क्या होगा कि 4 byte के स्पेस को लेते हुए हर एक मेमोरी का जो हर एक एलिमेंट जो एड्रेस रिजर्व करेगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा. ओके, but in the doubly linked list case this will hold a random address. Okay, but now notice over this here the node divided into 3 sections. Here the node divided into 3 sections where the first section hold the address for the previous node. Okay, previous node, and this section hold the address for the next node. Okay, similarly this for previous, this for next node, this for previous, and this for the next node. Okay, so on. Okay, and this section store info. It means this is the data field which will store your element, जो कि आपके element को store करेगा. So definitely in this case these 5, 15, 20, 25 and 30. Now notice over this. This will store the address for your next node. So definitely in this case this will store 1158 and this point this node. ये node हमारा point कर रहा है next node को. Okay. Now this will store the address for the next node. So in this case 1176 and this point this node. Okay. Now this will store the address for the this node. So this the address for this node is what 1112 and this point this node. ये point कर रहा है हमारे next वाले node को. And this will also store the address for your next node. So this hold 1138 for address for the next node. And again this is your last element. ये आपका last element है. So definitely in this case this is store null ptr. Okay, it means ये contain करेगा हमारा zero value. Okay. Now notice over that this is what ये हमारा forward traversing हो रहा है. Forward traversing हो रहा है. But here this is the mandatory thing. In this case here we need a start or head pointer. Okay,
दिस विल पॉइंट योर फर्स्ट नोड, जो आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. सो अगर ये आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, सो डेफिनेटली इन दिस केस दिस स्टोर 1104, इट मींस एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट नोड. ये आपके फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा. तो ये हमारा क्या हुआ, ये फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग हुआ, बाय विच वी कैन प्रिंट एलिमेंट लाइक दिस 5, 15, 20, 25 एंड 30. एडवांटेज इसकी क्या है कि सिंगल लिंक लिस्ट में हम केवल फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग ही कर सकते थे. सपोज इफ आई ट्राई टू डिलीट लास्ट एलिमेंट, अगर हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते देन इन दिस केस वी नीड टू ट्रैवर्स एन टाइम, तब हम लोगों को एन टाइम ट्रैवर्स करना पड़ता. ओके, बट in the doubly linked list case, this also here बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग भी पॉसिबल है. यहाँ पे बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग भी पॉसिबल है. वो कैसे देख लें. सो दिस नोड होल्ड एड्रेस फॉर योर प्रीवियस नोड. ये नोड जो है वो आपका प्रीवियस नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा. तो डेफिनेटली इन दिस केस 1112 दिस होल्ड 1112 द एड्रेस, दिस इज the address for your previous node, and this node hold the address for your previous node like 1176. This node hold the address for your previous node, so 1158. This node hold the address for your previous node like 1104. Okay, and now notice over this. अब आपकी इस 5 के प्रीवियस में कोई एलिमेंट है नहीं ना, so definitely in this case this will होल्ड 0 या कहिए नल वैल्यू आपका स्टोर करेगा, नल पीटीआर स्टोर करेगा. सो इन दिस केस हियर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ ट्रैवर्सिंग इज पॉसिबल. अगर हम सबसे लास्ट एलिमेंट को सिंगल लिंक लिस्ट के केस में डिलीट करना चाहते हैं या सबसे एंड साइड में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, इन दिस केस एन टाइम्स ट्रैवर्सिंग रिक्वायर्ड. ओके, बट डबली लिंक लिस्ट की अगर बात आती है तो यहाँ क्या है, हियर द बैकवर्ड traversing will also possible. So order of one time we can, okay, order of one time we can delete a last element or we can insert a last element, okay, according to our requirement. So this is the advantage regarding your doubly linked list. Now notice over this here only I try to make you understand how can we manually create. हम इस एलिमेंट्स को मैनुअल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद हम प्रोग्राम के तहत बताएंगे कि आखिर हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कैसे पॉसिबल है हमारे डबली लिंक लिस्ट के साथ. तो सिंपल अगर हम मैनुअली डिक्लेरेशन की बात करें, ध्यान देंगे क्योंकि हम प्रोग्राम में फिर मैनुअली नहीं बताने वाले हैं, लूप से बताएंगे. सिंपल सा हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि सपोज दिस इज योर फर्स्ट नोड. ओके, दिस इज योर फर्स्ट नोड, this one is your second node, this one is your third node, this one is your fourth node and this one is your fifth node. Okay, तो in this case at first the declaration will possible. यहाँ पे क्या हम लोग को करना होगा, डिक्लेरेशन करना होगा. ओके, सो डिक्लेरेशन विल व्हाट, अगर हम एक नोड का क्रिएशन करना चाहते हैं, सो डायरेक्ट हियर वी कैन राइट दिस इज द नोड. ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट या कहिए कि head pointer, we can also say that head pointer which will point the address for this node. Okay, so simple, here I am going to this create your first node. Okay, so new, this is the new keyword by which dynamic allocation will possible. So node and here this concept. So here हमने क्या किया कि सिंपल हमने एक नोड का क्रिएशन किया. ठीक है, एक न्यू नोड का क्रिएशन किया. क्लियर. नाउ सेकंड टाइम अगेन वी कैन क्रिएट नोड, दिस व्हाट, दिस सेकंड. सो सेकंड इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड जो कि हमारा क्या रखे हुए है, एक वैल्यू रखे हुए हैं, सेकेंड नल पीटीआर रखे हुए हैं एंड थर्ड नल पीटीआर रखे हुए हैं. ठीक है, वैल्यू रखे हुए हैं, नल पीटीआर रखे हुए हैं, नल पीटीआर रखे हुए हैं. अगर नया डिक्लेरेशन न्यू डिक्लेरेशन करते हैं और इंडिविजुअल डिक्लेरेशन करते हैं तो ये हमारा इस तरह का नोड क्रिएट करके दे रहा है जहां हमने एक वैल्यू को डाला, बस ये एक न्यू नोड क्रिएट किया जो कि हमारे 3 सेक्शन में डिवाइड है. तो सिंपल अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केवल नोड का क्रिएशन कर रहे हैं. नाउ नोड थर्ड सो ऑन. ओके, हमने यहाँ क्या किया, एक न्यू नोड यानी कि 3 हमने न्यू नोड का क्रिएशन कर दिया. ओके, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, तो डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को पुट कर रहे हैं किसमें,
हम हर एक नोड में, क्लियर। सो चलिए असाइन करते हैं एलिमेंट हर एक नोड के लिए, सो ऑन एन टाइम। ओके, आपको जितने टाइम एलिमेंट इंसर्ट करना है, आप क्या करोगे, पहले नोड का क्रिएशन करोगे मैनुअली, ठीक है। नाउ हमने क्या लिया था, फर्स्ट, ओके। और फर्स्ट में हम क्या पॉइंट कर रहे हैं, डेटा। और डेटा हमारे पास कितना है, सबसे पहला नोड में हमने क्या असाइन किया है, 5। तो सिंपल हियर आई राइट 5 लाइक दिस, ओके। दिस इज द मैनुअल असाइन। ये सेकेंड नोड में भी हम क्या डाल रहे हैं, डेटा। और डेटा हम कितना डाल रहे हैं इसमें, तो 5, 15, 20 लाइक दिस, ओके। सो दिस विल 15। नाउ थर्ड नोड, दिस ऑल्सो पॉइंट्स डेटा, एंड डेटा हमने क्या डाला, 20 लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैनुअल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग की अगर बात आती है, अगर हम ट्रैवर्सिंग की बात आती है, तो इन दिस केस बिफोर वी विल हैव टू क्रिएट लिंक। अभी हमने क्या किया है, ये एक इंडिविजुअल सारे के सारे नोड को क्रिएट किया, और सारे नोड में हमने क्या किया, वैल्यू को असाइन किया, ठीक है। अब वैल्यू असाइन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है। लिंक क्रिएट करना है हर एक नोड के बीच में, ठीक है। अभी तो ये हमारा इंडिविजुअल नोड है, अब हम हर एक नोड के बीच में अगर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज एन टाइम, यू में assign your data value according to your requirement, okay। now to create a link, सिंपल हमने किया गया। तो जो हमारा फर्स्ट नोड है, या हम यहाँ पर हेड भी डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नोड किसे पॉइंट कर रहा है, हमारे नेक्स्ट को, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारा क्या जा रहा है, सेकेंड नोड जा रहा है, ठीक है। 1 या फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है हमारे नेक्स्ट वाले को, और नेक्स्ट में हमारा क्या जा रहा है, सेकंड जा रहा है। नाउ हियर आल्सो द बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग विल पॉसिबल, जो कि फर्स्ट नोड हमारा प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ हमारा क्या जा रहा है, नल पीटीआर जा रहा है, ठीक है। नोटिस ओवर दिस हियर द फर्स्ट नोड दिस विल पॉइंट योर नेक्स्ट नोड, जो कि आपके सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। एंड हियर द फर्स्ट नोड दिस विल पॉइंट योर नल पीटीआर, ओके। सो ये हमारा प्रीवियस एड्रेस जो होल्ड किए हुए हैं, ये इस तरह से हमने फॉरवर्ड एंड फॉर द बैकवर्ड, ओके। ठीक सिमिलरली सेकेंड नोड हमारा पॉइंट कर रहा है टू नेक्स्ट वाले नोड को, और नेक्स्ट वाले नोड में हमारा क्या है, तो ये थर्ड वाले नोड के एड्रेस को होल्ड किए हुए है। एंड फॉर द बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग सेकेंड एक क्या कर रहा है, फिर से पॉइंट कर रहा है हमारे प्रीवियस नोड को, ओके। सो ये प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो कि होल्ड किए हुए है एड्रेस किसका, हमारे फर्स्ट नोड का, ओके। हमारे फर्स्ट नोड का, ओके। या दिस इज द सेकेंड नोड, दिस सेकेंड नोड पॉइंट योर नेक्स्ट नोड, जो कि होल्ड किए हुए एड्रेस आपका थर्ड नोड का। एंड दिस सेकेंड नोड पॉइंट योर प्रीवियस नोड, जो कि होल्ड किए हुए एड्रेस आपका किसका, दिस फर्स्ट नोड का। सो सिंपल, दिस वाज द मैनुअल डिक्लेरेशन, ओके। चलिए अब समझते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे प्रोग्राम के तहत, ठीक है। दिस वाज द मैनुअली डिक्लेरेशन। सो सिंपल, अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात की जाए, तो हम लोगों को एक स्ट्रक्ट नोड, दिस इज मैंडेटरी। हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक नोड क्रिएट किया है, जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, ओके। नाउ नाउ इनसाइड द डिक्लेरेशन हियर आई नीड इंट डेटा, ओके। एक डेटा सेक्शन चाहिए, और सेकंड हम लोगों को चाहिए एक पॉइंटर टाइप का नेक्स्ट, विच विल पॉइंट योर नेक्स्ट नोड। एंड थर्ड हम लोगों को चाहिए एक पॉइंटर टाइप का प्रीवियस, ओके, विच विल पॉइंट योर प्रीवियस नोड, ओके। सो दिस इज द सेक्शन। नाउ अब अगर हम
अगर हम फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग चाहते हैं, हमने तो मैनुअल डिक्लेरेशन कर दिया, ओके, ऊपर में आप देखे होंगे कि दिस इज द मैनुअल डिक्लेरेशन, आप इनसाइड द मेन आप इसे मैनुअल डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड सेम थिंग इफ आई ट्राई टू प्रिंट, सो हियर I have used a single function. Function name is what? Void print forward कर देते हैं, ओके, फॉरवर्ड, ओके। सो फॉरवर्ड प्रिंट के लिए हमने क्या किया है, नोट दिस इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड हियर आई पास हेड, ओके, एज द parameter, okay, this is what, so first note, this is the head pointer and with the this is the head pointer which will try to create a traverse, okay, by which we can traverse one by one node according to our requirement. So here I pass head and now this is the body part फॉर योर प्रिंट फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड प्रिंट करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पर एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप, ओके ओके, एंड दिस इज व्हाट नोड एंड हियर डिक्लेरेशन विल व्हाट, एक हम करेंट पोजीशन को डिसाइड करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट करते हैं ना i इक्वल टू 0 ये असाइन किए। सो यहाँ पर हमने एक सी वेरिएबल लिया है जो कि पॉइंटर टाइप का है और इसमें हमने क्या डाला, c इक्वल टू हेड, क्लियर, यानी ये हमारे फर्स्ट वाले नोड को होल्ड किया, फर्स्ट वाले नोड से स्टार्ट किया, c इक्वल टू हेड, ओके। नाउ this will point your next, ओके, जब तक आपका कंडीशन ना सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि करेंट पोजीशन इज नॉट इक्वल टू हमारा नल पीटीआर ना हो जाए, दिस विल प्रिंट योर बॉडी पार्ट, ये आपके बॉडी पार्ट को प्रिंट करेगा और ये क्या करते चला जाएगा, आई प्लस प्लस यानी सी प्लस प्लस, सी नेक्स्ट सी नेक्स्ट सी नेक्स्ट, कब तक, जब तक सी इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, जब तक हमारा सी जो है वो नल पीटीआर ना हो जाए, जब तक ये कंडीशन हमारा फॉल्स ना हो जाए, ये हमारा सी नेक्स्ट को पॉइंट करते चला जाएगा, ओके। एंड इन दिस केस दिस इज द बॉडी पार्ट will what, see out, see this point डेटा, ओके, आपके डेटा को क्या कर रहा है, प्रिंट करते चला जाएगा विथ स्पेस। नाउ दिस क्लोज फॉर लूप and I need new line for each element, so simple, here I type C or end n, okay, now close this, void print forward। अब देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग हो रहा है, इन दिस केस दिस विल प्रिंट आवर एलिमेंट एज आई write 5 15 20 25 and 30 like this, okay। Now for the backward traversing, here again we can use our next function like void print backward, okay, and in this case here again I would pass node and pointer type tail, कोई दिक्कत, and this is the body part and now I'm going to start a for loop, here हम फिर से क्या करेंगे, for loop को start करेंगे, same thing, note here the declaration will what, c, लेकिन c इक्वल टू हमने फर्स्ट टाइम में असाइन क्या किया था, c इक्वल टू हेड, जो कि हमारे पहले वाले नोड्स को पॉइंट किए हुए है, देन दिस विल ट्रैवर्स एज द फॉरवर्ड, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इस करंट पोजीशन में हमने डाला टेल, ओके। अब ये टेल कब तक बॉडी पार्ट को प्रिंट करेगा, तो जब तक c इज नॉट इक्वल टू सेम थिंग नल पीटीआर ना हो जाए, ठीक है, ये c हमारा प्लस प्लस होते चला जाएगा, लेकिन कहाँ तक, देखिए ये c हमारे नेक्स्ट को प्लस कर रहा है, लेकिन अब ये c हमारा क्या करेगा, इस प्रीवियस को पॉइंट करते चला जाएगा, दिस प्रीवियस 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 प्रीवियस, ओके।
तो ये प्रीवियस को पॉइंट करते चला जाएगा फॉर द बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग जब तक इसको नल पीटीआर ना मिल जाए। दिस इज द नल पॉइंटर। ओके, तो जब तक इसको नल पीटीआर ना मिल जाए, सो सिंपल सी दिस विल पॉइंट योर नल सॉरी प्रीवियस। ओके, प्रिंट करेगा जब तक इसे नल पॉइंटर ना मिल जाए। और इन दिस केस सिंपल दिस विल print your data current this point data with a space. So simple, this is a space and this close for this for loop and close for function void print backward traversing. But here I would like to print our each element in new line, so indent. Okay, so this is traversing about forward traversing and backward traversing. Okay, now inside the main part you may also declare these types of declaration manual. Inside the int main part you may also declare, okay, manually declaration should be possible, but here again I am going to, जैसे इंट में हमने डायरेक्ट क्या किया, हर 5 एलिमेंट्स के लिए एक एरे ही डिफाइन कर लिया। सो सिंपल हियर इंट एक वैल्यू, और जो वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, एरे टाइप का है। हमने एलिमेंट क्या दिया है, 5, 10, 15, 20 and 25 like this. Okay, this is our element. Now in this case this will mandatory to find out the size about each element. So here again the next one declaration, एक हमने int n डिसाइड किया जहां हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट का साइज निकाल रहे हैं, साइज ऑफ किसका, तो ये हमारा वैल्यू है। एंड वैल्यू को हमने डिवाइड किया, टोटल वैल्यू को हमने डिवाइड किया किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से। सो वैल्यू and any particular element index id you may write here. Okay, so this is what we by which we can find the size of each element. Okay, अब देखिए, अब यहाँ पर एक हम मैनुअल डिक्लेरेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक हम मैनुअल डिक्लेरेशन कर लेते हैं फर्स्ट नोड के लिए। ओके, सो हियर द नोड, हियर डिक्लेरेशन विल व्हाट, एक हमने हेड पॉइंटर का डिक्लेरेशन किया जहां हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड तैयार कर रहे हैं। नाउ नोटिस ओवर दिस द थ्री सेक्शन, जो वो 3 सेक्शन था उसमें हम लोग डालते क्या है, सो पहले वाले में हम डालते हैं एलिमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा होता है नल पीटीआर एंड द नेक्स्ट हुआ हमारा नल पीटीआर, जो मैं आपको ऊपर में बताना भी चाह रही थी। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिक्लेरेशन अबाउट योर फर्स्ट नोड। हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट नोड का डिक्लेरेशन किया जहां हम इस नोड के कैरेंट में, जो हम कैरेंट लूप जो चला रहे हैं, इसमें हमने सबसे स्टार्टिंग में असाइन कर दिया किसको, हेड को। ओके, एंड अगर रिवर्स प्रिंट करना है, अगर मुझे रिवर्स प्रिंट करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे कि नोड टेल में हम क्या असाइन कर देंगे, हेड को। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग के लिए। ओके, ये करंट पोजीशन है, या फिर 1 मिनट, ये हम असाइन कर सकते हैं नोड पॉइंटर सी इक्वल टू टेल भी असाइन करते हैं, बट हियर द कंफ्यूजन शुड बी। ओके, यहाँ क्या होगा, एग्जीक्यूशन के समय में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो सिंपल हियर आई राइट नोड, एक हमने टेल नाम का पॉइंटर डाला और जहां हम हेड को असाइन कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर रिवर्स प्रिंटिंग। ओके, एक डिक्लेरेशन तो हमने कर दिया, बाकी का कर लेते हैं, फिर से एक लूप चला लेते हैं, फॉर लूप। ओके, वो हमारा मैनुअल डिक्लेरेशन है सिंपल, उस मैनुअल डिक्लेरेशन के बाद ही हम सारे को प्रिंट कर सकते हैं।
नॉट इशू, बस मुझे यहाँ तक ही लिखना है। बाकी इंट एन के प्रोग्राम में, इंट मेन के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, ये मैनुअल डिक्लेरेशन को लिख देंगे। ओके, दिस विल ऑल्सो प्रिंट, वो वैसे भी हमारा प्रिंट कर लेगा। सो इंट आई इक्वल टू 1 से असाइन करते हैं। हमने 1 से क्यों असाइन किया है, क्योंकि हम हेड के लिए, इस हेड के लिए सबसे पहले एलिमेंट का वैल्यू हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, वैल्यू 0। वो 0 इंडेक्स आईडी वाले एलिमेंट को हमारा ले लेगा। सो हम यहाँ पर आई इक्वल टू 0 ना लेकर आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेस देन एन टाइम, और ये हमारा करते चला जा रहा है प्लस प्लस आई। जहां हम एक नोड, नोड में हम क्या डिक्लेरेशन करेंगे, एक पॉइंटर क्रिएट कर दे रहे हैं, न्यू नोड, एंड दिस इज द डायनेमिक डिक्लेरेशन न्यू नोड, और हम यहाँ प्रिंट करने वाले हैं वैल्यू ith एलिमेंट। ओके, नल ptr, एंड लास्ट हमारा क्या लेके चला जाएगा, करंट वैल्यू। एक हमारा नल ptr ले रहा है और दूसरा हमारा करंट वैल्यू लेते चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस के लिए, ये हमारा नेक्स्ट के लिए। ओके, सो करंट दिस विल पॉइंट नेक्स्ट न्यू नोड, एंड करंट इक्वल टू हमने असाइन कर दिया इसमें क्या, तो न्यू नोड को। ओके, सो दिस विल प्रिंट दिस फॉर फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग। ये हमारा क्या करते चला जा रहा है, फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग करते चला जा रहा है। ठीक है, अब फॉर द लास्ट नोड के लिए हम एक डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं क्या, सो टेल इक्वल टू करंट। ठीक है, अब टेल को हमने क्या किया, करंट पोजीशन से डिसाइड कर दिया। अब सिंपल, अगर हम फॉरवर्ड प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट फॉरवर्ड अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमने प्रिंट फॉरवर्ड नाम का एक फंक्शन बनाया था, जहां से हम क्या पास कर देंगे, हेड को। ओके, नोटिस ओवर दिस, हमने यहाँ पर एक प्रिंट फॉरवर्ड नाम का, ये प्रिंट बैकवर्ड, और देखिए ये प्रिंट फॉरवर्ड के नाम से जो फंक्शन बनाया, वहां पे हम क्या पास कर दे रहे हैं, इस हेड को पास कर दे रहे हैं। ठीक है, फॉर द फॉरवर्ड प्रिंट, और बैकवर्ड प्रिंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रिंटिंग के लिए सिंपल सा हम फिर से इस प्रिंट लिस्ट से नेक्स्ट हमारा जो प्रिंट लिस्ट हमारा होगा, जो कि हमने बैकवर्ड सजेस्ट किया है। ठीक है, बैकवर्ड दिस टाइप्स का जो हमने फंक्शन बनाया, यहाँ से हम सिंपल हम टेल को पास कर देंगे। सो दिस विल प्रिंट रिवर्स, ये आपके डेटा को रिवर्स में प्रिंट कर देगा। ओके, रिटर्न 0, नाउ क्लोज दिस, सिंपल थिंग। तो चलिए चलते हैं, हम इसे प्रोग्राम के तहत देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होने वाला है, सो सॉरी, नहीं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना सकती हूँ। So thank you for watching this. In my next part, I would only try to execute the program, same program. Okay, thank you for watching this.